Hello students, welcome in this online class, and today the class is for the standard 10 students where we are going to study the topic heredity. This is very important chapter for the students, and those who are appearing in the board examination must study very well because this chapter has there will be many questions from this chapter, that is chapter 8 heredity. So first of all you have to understand what is heredity. Let us talk about the topic heredity and variation, what we have to study in this topic. So as you know that we are going to study the topic heredity, then we must know that heredity is a topic that we have to study in the branch of genetics. जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं मेनली. वन इज इनहेरिटेंस एंड अनदर इज वेरिएशन. आई होप यू मस्ट हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. और वो कैसे होगा, केवल एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है. बहुत बार लोगों का सजेशन मिलता है एनसीईआरटी एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी की हर लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अच्छे से समझ जाओगे then it is no doubt that you will score good marks in your examination and you will be able to solve many questions. तो व्हाट इज हेरिडिटी? दैट जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. जेनेटिक्स जो है एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं और दूसरा वेरिएशन पढ़ते हैं. तो इनहेरिटेंस में हमें क्या पढ़ना है कि हेरिडिटी जो है वो इनहेरिटेंस के लिए आता है. कि जेनेटिक्स में जो इनहेरिटेंस इनहेरिट करना मीन्स अपने फादर मदर से जो सिमिलैरिटी होती है उसको हम लोग इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेंस हुआ. और सेकेंड इज दैट वी आर समथिंग varying also from our parents. The offsprings are also differing from the parents, that is called variation. So the combined study of inheritance and variation is called genetics, and genetics, the study of biology, the branch of biology that deals with inheritance and variation, is called genetics. So I write here definition of genetics. You can also write in your notebook if you have the branch of biology that deals with inheritance and variation is called genetics. And heredity comes from this topic genetics. जेनेटिक्स के अंदर ही हेरिडिटी की टॉपिक आती है. तो हेरिडिटी मीन्स कि हम क्या क्या चीज इनहेरिट किए हैं. इनहेरिट, द वर्ड हेरिडिटी हैज कम फ्रॉम द वर्ड इनहेरिट. मीन्स आप कहते हैं कि हमें विरासत में मिला है. व्हाट इज दिस? इनहेरिट करना मीन्स आप अपने पेरेंट्स की जो क्वालिटी है, पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स में आना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. कैरेक्टरिस्टिक्स of parents are carried to the offsprings. So this is called inheritance. To carry characteristics of parents are carried on to the offsprings, and this process is called inheritance. And from inheritance we have got the word heredity. So heredity में क्या है, हमें inheritance को पढ़ना है, how we are carrying the characters of our parents to the offsprings. So in this chapter we shall discuss, we have seen that reproductive processes give rise to new individuals. मैं कहती हूँ कि बुक को पढ़ने में आपको कहते हैं कि मैं चाहूँ तो अभी आपको एकदम शॉर्ट नोट्स दे दूँ और आप भी तैयार हो जाएं याद करके. बट अगर एक बार आप बायो की बुक को या किसी भी एनसीईआरटी की बुक को बहुत ही अगर थॉरोली पढ़ लेते हो, तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके लिए बुक्स एकदम पढ़ना इजी हो जाए और आप बुक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन बुक की समझ सकते हैं. तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. अब ये बात समझ रहे हैं कि जब न्यू इंडिविजुअल्स आता है दैट इज ड्यू टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेज एंड दैट आर सिमिलर बट सबली डिफरेंट. तो ये क्या है ना, जब भी न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू द पेरेंट्स,
बट समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। तो हमें क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस के साथ साथ हमें थोड़ा वेरिएशन भी पढ़ना है, बिकॉज वी आर नॉट 100% सिमिलर, we are maybe 2%, 5% variation, there may be variation also. तो वेरिएशन कैसे होता है, हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग asexual reproduction, and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. If we observe a field of sugarcane, we find very little variations among the individual. अब कहते हैं कि जो ये सिमिलैरिटी होती है, ये जो वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशंस कब आएंगे, वेरिएशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएंगे। तो वेरिएशंस हमेशा, ये आप जान लीजिएगा कि वेरिएशंस जो आते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिनिमम होते हैं, एकदम नेग्लिजिबल है, जो नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द वेरिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेजर रीजन दैट ब्रिंग्स वेरिएशन। ये दोनों में बहुत ज्यादा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउजेज variation, sexual reproduction causes variation. So there are 2 or 3 notes that we are going to write here. First of all, we are going to write genetics. Genetics, the branch of biology that deals with inheritance and variation. And what is inheritance, that you have to understand. अब इनहेरिटेंस क्या है, तो इसके लिए भी हमने एक बुक का क्वेश्चन पेज रखा है, जहां आप लोग देख रहे हैं, इन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी known as genetics, the subject deals with inheritance and variation of characters from parents to offsprings. अब inheritance, what is inheritance? For inheritance, it is the process by which characters are passed on from parent to progeny, and it is the basis of inheritability. और वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेंस के लिए आप ये डिफिनेशन याद रखेंगे, जो मैं भी लिख रही हूँ इसके अनुसार। Inheritance is the process by which characters are passed on. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस करना है, डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, यहाँ पे इनहेरिटेंस करना कोई प्रॉपर्टी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ हम लोग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो इनहेरिट करते हैं हम लोग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। So inheritance is the process, we have again written here. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. And if we write variation, what is variation? Variation is the degree. वेरिएशन क्या है, वेरिएशन एक डिग्री है, मीन्स कि कितने से डिफरेंस हो रहा है, कितने परसेंट डिफरेंसेज आ रही है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो वी हैव टू राइट
Variation is the degree by which parents differ from their प्रोजेनी। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये तीन डिफिनेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी क्या हो गया? हेरिडिटी इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी इज द basis of heredity is the basis of inheritance by which characters are passed on from parents to offsprings. So these are the three definitions, four definitions that you have to study very well, and you will learn the definitions. And now we are going once again in notes. वेरिएशंस क्यों होते हैं? वेरिएशंस आर काउस्ड, अभी हमने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो जिसमें वेरिएशंस जो है आप जानेंगे मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के द्वारा ही होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होते हैं। बट somehow some cases can be seen in asexual reproduction also. So you have to understand these things, that how sexual reproduction is the main cause for variation. इस बात को हमेशा याद रखिएगा, variation is caused due to sexual reproduction. But in some cases, like in sugarcane field or in other crops field where asexual reproductive plants are grown, there may be some differences can be seen. Then what are the things that you have to study further? That is the accumulation of variation during reproduction. Accumulation of variation. What do you mean by the word accumulation? Accumulation का मतलब होता है कुछ जमा करना, मीन्स कि इसे पाइल अप करना। टू पाइल अप वी कैन से inheritance from the previous generation provides both a common basic body design, एक बेसिक बॉडी डिजाइन मिलता है, सब चेंजेज इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बॉडी डिजाइन नहीं चेंज होगा, मीन्स मे भी थोड़ा बहुत चेंजेज आ सकती हैं, बट बॉडी डिजाइन इज द बेसिक कैरेक्टर विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इज इन टर्न रिप्रोड्यूसेज। तो सेकेंड जनरेशन में क्या होगा? दे हैव डिफरेंसेस दैट इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो दोनों जनरेशन में जितना इनहेरिटेंस हुआ, तो देयर विल बी सम variations also, some differences also that you can observe also. So figure 8.1, figure 8.1 में आपकी बुक के अनुसार क्या दिया जा रहा है? क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस। आप यहाँ देखो, इधर देख लो, यहाँ से जब रिप्रोडक्टिव पेरेंट्स जो रिप्रोडक्शन हुआ फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में जो प्रोजेनी आए हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों देख सकते हो। ये अंतर आ रही है, इसके भी अंतर आ रहे हैं, इस यहाँ डिजाइन में अंतर है। तो बॉडी डिजाइन सब सेम है, बिकॉज हियर यू कैन सी सिंपली सर्कुलर अगर मैं कहूँ, और इस पर जो डिजाइन है वो सेम है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है वो सेम है, बट द कलर इज कॉम्प्लेक्शन एंड द डिजाइन में भी different. तो जो basic structure of the individual, basic structure of the organism will remain same. So here understand, because ये बोर्ड के एग्जाम में बच्चे ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक डायग्राम के नीचे दिया हुआ जो डिटेल्स है इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डोंट डिपेंड अपॉन ओनली एक्सरसाइज क्वेश्चंस,
and you are reading about different questions from the different books. But if you read the NCERT book के जितने भी बॉक्स में इंफॉर्मेशन होते हैं, जितने भी डायग्राम्स के नीचे में जो दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन, उसको आप पढ़ लें तो आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट। द ओरिजिनल क्रिएशन, द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप, जब सबसे पहले जो ऊपर पे ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, इसमें देखो कि सब कुछ ब्लू कलर में है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, और ये बीच का एक सर्कुलर डायग्राम देख रहे हो। तो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म गेव टू न्यू टू इंडिविजुअल्स, अब ये दो इंडिविजुअल्स आ गए, सिमिलर इन बॉडी डिजाइन, लेकिन थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि ऊपर पे रेड कलर आ रहा है। इच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल्स, और फिर ये भी दो इंडिविजुअल्स को जन्म दे रहे हैं, यहाँ भी रिप्रोडक्शन हो रहा है और ये भी दे रहे हैं। अब क्या होगा, each of the four individuals in the bottom row will be different from each other, while some of these differences will be unique. Others will be inherited from their respective parents who were different from each other, while some of the differences will be unique, while others will be inherited फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। बहुत सारे डिफरेंसेज आएंगे, कुछ डिफरेंसेज अलग भी होंगे, यूनिक हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेज, मोस्ट ऑफ द बॉडी डिजाइंस विल बी सिमिलर एज टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो। सो फिगर 8.1 यही दिखा रहा है कि सिचुएशन ऑफ ए सिंगल पेरेंट, ये सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, तब की बात बता रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं दिख रहे हैं, बहुत थोड़ा वेरिएशंस दिख रहे हैं, ऑल्दो की वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं, बट वी कैन सी ए बिट ऑफ डिफरेंसेस इन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ओके, asexual reproductive organisms में आप बहुत a little bit of variations can be observed. As happens in asexual, if one bacterium divides, then the resultant two bacteria again divide. The four individual bacteria generated would be very similar, but there will be very minor differences. लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत छोटा सा एक difference होगा, very minor differences between them. और ये क्यों होगा? Due to small inaccuracies in DNA copying. जब डीएनए की जो कॉपी होती है, उस समय अगर थोड़ी सी भी कहीं भी इनएक्यूरेसी हो गई तो उसके कारण ये डिफरेंसेस होते हैं। However, if sexual reproduction is involved, the greater diversity will be generated, as we will see what we when we discuss the rules of inheritance. तो अब आपके पास क्वेश्चन है, why we can see that why there is the minor differences, क्वेश्चन आपकी बनती है ना इसमें। तो आपकी जो बुक है, बुक से आप एक एक क्वेश्चन बनाते जाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। व्हाई सम माइनर डिफरेंसेज आर सीन, सम माइनर डिफरेंसेज आर सीन इन asexual are seen in organisms in asexual reproduction। तो इसका आंसर आप केवल यही देंगे, ड्यू टू inaccuracies in DNA copying। डीएनए की जो कॉपी होती है, ये क्लास 12 में आपके लिए बहुत बड़ी चैप्टर है, आप अगर पढ़ेंगे बाद में तो आप जानेंगे कि किस तरह से डीएनए की कॉपी होती है, तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो वो सारी बातें जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये एक्यूरेसी नहीं होने के कारण ही ये डिफरेंसेस दिखने लगता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू रीड डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव different kinds of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave. Selection of variants by environmental factors forms the basis for evolutionary processes, as we shall discuss in later sections. Now there are two questions that you have to write. If a trait means क्या होता है? If a trait A मतलब लक्षण, trait A exists in 10% of the population of an asexually reproducing species,
जो स्पेसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं उसके 10% पॉपुलेशन में एक ट्रेट ए दिख रहा है, एक ट्रेट बी जो है वो अगले 60% पॉपुलेशन में दिख रहा है। तो विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, और कौन सा ट्रेट, ट्रेट मीन्स लक्षण होता है, कौन से ट्रेट जो होते हैं ज्यादा जल्दी अपीयर होंगे, जो 60% वाले पॉपुलेशन में दिख रहा है या जो 10% वाले पॉपुलेशन में दिख रहा है। तो ये है ना कि इसमें जो है वेरिएशंस कम होते हैं, तो जो 60% के पॉपुलेशंस होंगे उसी में वो दिखेंगे। ठीक है, तो you have to understand how does the creation of variation in a species promote survival. creation of variation, वेरिएशन जो स्पेसीज में होता है इससे सर्वाइवल क्यों होता है, ये बातें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात ये है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो और वेरिएशन नहीं हो तो वी ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम इम्यूनिटी, we all organisms of the population of the one population, suppose ह्यूमन स्पेसीज की बात करें तो हर इंडिविजुअल्स की इम्यूनिटी पावर अलग होती है। सपोज देयर इज सम ड्रॉट्स और सम क्वेक्स, अर्थक्वेक्स, बट इवन देन द अर्थ डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, हमारा जो ये पॉपुलेशन है ये बना रहता है। बट सम पीपल डाई वेरी क्विकली, बट सम पीपल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, दे सर्वाइव। तो दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड वी शैल रीड दैट वेरिएशन जो है हमारे बॉडी के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो वेरिएशंस है बिकॉज ऑफ विच द इम्यूनिटी इज डिफरिंग, immunity is differed from one species, one individual to another individual, and due to which the variation in the species promote survival, variation or in the species promote survival। समझ रहे हैं ना, how does the creation of variation in species promote survival। तो variation के कारण क्या है, variation brings special characters, immunity, stamina, we can say, in every individual, which helps them in survival during adverse situations। So this is very important। Heredity, you can see the rule of heredity। Now we have to come on another topic, heredity। What is heredity? Heredity अभी हमने बताया, most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design, and the rules of heredity determined by the process by which traits and characteristics are reliably inherited। अभी हमने डिफिनेशंस में दिया कि इनहेरिट करते हैं, हेरिडिटी बाय विच कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स में क्या दिया था, अभी आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग इसमें बाय विच कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हो ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स, ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन। तो हेरिडिटी में जैसे पास होता है दैट इज द सेम थिंग दैट हियर इट इज आल्सो रिटन कि रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। नाउ लेट अस टुक ए क्लोजर लुक, नाउ लेट अस हैव ए क्लोजर लुक, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए दिस पिक्चर, और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक फ्री है ईयर जो है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये पोर्शन पर ध्यान देंगे और इस पोर्शन को देखिए दोनों के, तो फ्री है और एक अटैच ईयर लोब्स है। लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयर लोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड in some of us and not in others। Free and attached earlobes are two variants found in human population। तो human population में इस तरह के छोटे छोटे कुछ कुछ variations हमें दिखने को मिल जाते हैं।
सो यू कैन ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड उसका लिस्ट बना सकते हैं। ये एक्टिविटी है बच्चों के लिए कि कितने आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनका फ्री और अटैच्ड ईयर लोग का अटैच बनाइए, फिर परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। हैविंग ईच फाइंड आउट अबाउट ईयर लोब ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट, correlate the earlobe type of each student with that of their parents, and based on this dividend suggest a possible rule for the inheritance of earlobe types। इससे क्या रूल निकल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है, तो ये आप बना सकते हो। तो रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। अब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स क्या है? इनहेरिटेंस, जो लक्षण हम माता पिता से अपने पेरेंट्स से कैरी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। Means not only for the human population, I am telling it that the traits are inherited from parents to offsprings in every organisms wherever the sexual reproduction is taking place, the asexual reproduction is taking place. But in sexual reproduction variations will be observed on a large scale, variation जो है ज्यादा होगा, but in some cases in we can see the variations in asexual reproductive organisms also, be it plant or be it animals। So we have to study now। ये आपने पढ़ा। What exactly do we mean by similarities and differences? Similarities inheritance है और differences variation है, बस हम यही अंतर बात बताएंगे आपको। सिमिलैरिटीज को इनहेरिटेंस कहते हैं, जो आप इनहेरिट कर रहे हो, जो ला रहे हो पेरेंट्स से, और डिफरेंसेज है जहाँ पे हम वेरिएशन है, जहाँ पर हम डिफर कर रहे हैं पेरेंट्स से, इसको वेरिएशंस कहते हैं। सो वी नो दैट ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की सारे फीचर्स है। इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स, लेकिन ये कंप्लीट अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता है, बिकॉज इट शोज ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों होता है बच्चों? तो ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। Now we can study further that what we have to study Mendel's law। Who was Mendel's? ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? तो मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ग्रेगर जॉन मेंडल था और इन्होंने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया है। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि पी प्लांट पे इन्हें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ज़्यादा दिखाई दिए थे। तो the rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child। equal amount of genetic material जो है वो चाइल्ड में भेजा जाता है। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। पैटर्नल डीएनए और मैटरनल डीएनए दोनों के जो कैरी होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट, फॉर एवरी ट्रेट, फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड, then the traits seen in the child। Mendel worked out the main rules of such inheritance। तो इसी पे वर्क मेंडल ने अपना इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल दिया है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम मोर देन ए सेंचुरी एगो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हियर, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ना है। ग्रेगर जॉन मेंडल, born on 1822 and died on it in 1884। So you can take out the period for which he lived on this earth। Mendel was educated in a monastery। monastery में उनका एजुकेशन हुआ and he went to study science and mathematics at the University of Vienna। आपको ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन को कभी भी स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप, don't skip, don't skip the information given in the box।
ऑफ NCERT बुक। बच्चे लोग समझ जाइए। सो he got the failure in examination for teaching certificate, although टीचिंग के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका जो उत्साह था, जील मीन्स यहाँ पे उत्साह होता है, साइंस के प्रति, साइंस की खोज के लिए उनका बहुत ही उत्साहित थे वो। तो वो उन्होंने क्या किया, एक मॉनेस्ट्री में, वो एक आश्रम में वहां पर जो है सो पी पी का पौधा उगाना शुरू किए, मटर का पौधा। मेनी अदर्स हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पीच। इसके अलावे भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मटर के पौधे पे इसका एक्सपेरिमेंट किया था, बट कंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया था। लेकिन और अदर ऑर्गेनिजम्स पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ब्रॉट मैथमेटिक्स इन द सब्जेक्ट बायोलॉजी। अभी हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स की टॉपिक है और उसको बायोलॉजी में लाया गया। तो इसकी क्रेडिट किनको दी गई, ग्रेगर जॉन मेंडल को दी गई। ही वॉज द मेंडल ब्लेंडेड इज नॉट, ब्लेंडेड मीन्स मिक्स कर देना, his knowledge of science and mathematics, and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation। हर जनरेशन में जो एक एक लक्षण दिख रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, और उसका एक हिसाब होना चाहिए कि कितना लक्षण जो है सो एक जनरेशन में आता है और कितने लक्षण दूसरे जनरेशन में आते हैं। इससे इन्होंने ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, इन्होंने प्रिंसिपल को दिया, और इससे ये कंक्लूडिंग पोर्शन पे, कंक्लूडिंग प्रिंसिपल पर आ गए, और इनकी लॉ को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। तो मेंडल ने क्या किया, तो मेंडल ने क्या किया, तो इस चीज को आप यहां देखो। मेंडल ने इन बुक्स को, ये कैरेक्टर्स को रीड किया। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, सीड शेप, सीड कलर, आप देख सकते हो। सीड शेप, सीड शेप कौन होंगे, राउंड होंगे और रिंकल्ड होंगे। सीड कलर क्या होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा। फ्लावर कलर क्या होगा, वायलेट ग्रीन होगा। पौधा दोनों पी का है, लेकिन पी के ही दो गार्डन का अगर पौधा को लिया गया तो उसमें पी में कभी उसके जो फ्लावर कलर है, किसी पीस की कलर वायलेट है तो किसी की पीस की कलर वाइट है, किसी की सीड जो है येलो है तो किसी की ग्रीन है, किसी सीड शेप राउंड है तो रिंकल्ड है। पॉड शेप, जो पॉड आप देखते हो जिसमें हम लोग मटर का दाना पाया जाता है, जिसको छीमी कहते हैं, इनको दैट इज कॉल्ड फुल एंड सम इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। कुछ कुछ पॉड कलर ग्रीन, कुछ के पॉड कलर येलो भी है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल होंगे, या तो एक्सियल मीन्स कि एक्सिस पे पाए जा रहे हैं, कुछ एक्सिस पे साइड में पाए जा रहे हैं, कुछ टर्मिनल देख रहे हो ऊपर टॉप पे पाया जा रहा है, इसी को टर्मिनल कहते हैं। ये देखो, कुछ टॉल हैं तो कुछ ड्वार्फ हैं। तो अब आपको ये देख बताना है कि कितने सारे कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने उसको ऑब्जर्व किया। तो मेंडल ने सबसे पहले फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का कलर को देखा, ठीक है, फ्लावर के कलर को देखा, याद रखिएगा। फ्लावर के भी दो चीज देखा गया, कलर और पोजीशन। फ्लावर के कलर और पोजीशन, सीड के शेप और सीड के कलर, पॉड के शेप और पॉड के कलर। तो इस तरह से आप इसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा। मेंडल्स ने, मेंडल took 7 characteristics, 7 characteristics, 7 contrasting characteristics, 7 contrasting characteristics of pea plant for his experiments to arrive on the law of inheritance। व्हाट आर दिस, फर्स्ट अभी हमने बताया, क्या बताया आपको, फ्लावर, फ्लावर का कलर बता दिया और फ्लावर की पोजीशन बता दिया। तो फ्लावर की कलर क्या हो सकती है,
वायलेट हो सकती है या फिर वाइट हो सकती है। पोजीशन क्या हो सकती है, एक देखा हमने एक्सियल देखा, तो दूसरा क्या देखा हमने, टर्मिनल देखा। फिर हम सीड की कलर देखें और सीड की शेप देखा। सीड कलर और सीड शेप। अभी जो हम लोगों ने इसमें देख रहे हैं कि सीड का कलर क्या है, येलो और ग्रीन है। सीड शेप क्या है, राउंड और रिंकल्ड है। सीड कलर येलो हो सकते हैं और ग्रीन हो सकते हैं। सीड शेप क्या हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं और रिंकल्ड भी हो सकते हैं। तो फिर हम लोग पॉड पे आएंगे। पॉड पूरे कंप्लीट छीमी की बात करें, पॉड का मतलब इस तरह का कैरेक्टर जो हम देख रहे हो, जिसके अंदर छीमी लगी रहती है, दिस इज कॉल्ड। और अगर अलग से हम केवल सीड का मतलब केवल सीड हो जाता है, तो से अभी हम लोग पॉड कलर बोल रहे हैं। पॉड कलर जो अभी आप हमने देखा, पॉड कलर और पॉड शेप। तो पॉड शेप में एक फुल है, एकदम स्ट्रेट है, तना हुआ है, अच्छा है, स्मूथ है। एक कॉन्स्ट्रिक्टेड है, नॉट कुड नॉट बी वेल डेवलप्ड, और ग्रीन एंड येलो। अब यहाँ देखना, ध्यान देना है कि येलो ग्रीन सीड में था, लेकिन पॉड कलर में ग्रीन येलो बोलेंगे, ठीक है। पॉड शेप, पॉड शेप क्या हो गया, फुल, मीन्स कि जो अच्छे से डेवलप है, स्मूथ है, बोल्ड है, अच्छे अच्छे बीज हैं उसमें। और एक है कंस्ट्रिक्टेड हो गया, जो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाया है। कंस्ट्रिक्टेड इज नॉट स्मूथ पी, नॉट स्मूथ पी, constricted. Okay, pod color, pod shape. Once again, one topic is left, that is seed shape, seed color, flower shape, flower color and flower position, pod color, pod shape, and next last one will be stem की height। stem की height भी आ रही थी, जिसमें टॉल है और ड्वार्फ है। तो ये दो कैरेक्टर जो आप देख रहे हो, तो आउट ऑफ दीज कैरेक्टर्स, तो एक जो है क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहलाएंगे, और एक कहलाएंगे रिसेसिव कैरेक्टर कहलाएंगे। रिसेसिव दैट कुड नॉट एक्सप्रेस, बट डोमिनेंट दैट कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको पहले ही यहाँ पे हम लिखते हैं, डोमिनेंट और दिस इज रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर्स, डोमिनेंट ट्रैट लिखा हुआ है, डोमिनेंट ट्रैट और रिसेसिव ट्रैट। तो इस तरह से आपकी बुक में भी अगर हम पढ़ें, तो यहाँ भी पढ़ेंगे कि उन्होंने राउंड और रिंकल सीड्स लिया था, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स लिया था, व्हाइट वायलेट फ्लावर्स लिया था, और इस तरह से इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जो विजिबल थे, कंट्रास्टिंग थे, मीन्स कि ऑपोजिट थे। वायलेट और वाइट, तो इसको क्या कहेंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहेंगे। टॉल है तो शॉर्ट है, इसको कंट्रास्टिंग कहेंगे। राउंड है, रिंकल है, इसको भी कंट्रास्टिंग कहेंगे। तो ही टुक पी प्लांट्स विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट उन्होंने लिया, और उस दोनों प्लांट को फिर क्या कराया, रिप्रोड्यूस कराया। हाइब्रिड जो निकला, उस हाइब्रिड को फिर उन्होंने क्रॉस कराया। तो प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी, प्रोजेनी जो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में निकाला, उसको फिर क्रॉसिंग कराया, और कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी, और उसके बाद उन्होंने टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी की परसेंटेज कैलकुलेट की। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर बुक में आप देखें, आपकी बुक में जितनी बातें हैं, बस हम बहुत ज़्यादा बात नहीं बोल रहे हैं, जितनी आपकी बुक में पढ़नी है अभी उतना ही पढ़ेंगे। बातें बहुत सारी है, बहुत सारी इसकी डिस्कवरी हो चुकी है, बट वी हैव टू स्टडी वट एवर, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है, दैट शुड बी स्टडीड वेरी वेल।
देयर वेयर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन। ऐसा नहीं था मिडिल वाला कोई पोर्शन, मिडिल वाला कोई कैरेक्टर्स अपियर नहीं हो रहा है, ना तो टॉल है ना शॉर्ट है, आइदर टॉल होगा और आइदर शॉर्ट होगा। F1 प्रोजेनी में क्या हुआ, नो मीडियम हाइट प्लांट्स, मीडियम हाइट प्लांट्स नहीं आए और सारे के सारे प्लांट टॉल हो गए, जबकि इन्होंने टॉल और शॉर्ट दोनों को क्रॉस कराया है। यहाँ देखिए टॉल कैपिटल, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो स्मॉल होते हैं इसको स्मॉल में लिखते हैं। लाइट, so their light has gone now. So let us अंडरस्टैंड इट कि टॉल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट्स को जब क्रॉस कराया गया तो जो F1 प्रोजेनी में जितने प्लांट्स आए थे वो देखने में सारे टॉल थे। अब इसके लिए बच्चों को तुमको थोड़ा सा कुछ याद रखना है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। डोमिनेंट, रिसेसिव आप याद रखिएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स that express that are expressed in an organism and also denoted by capital letters. Recessive क्या है, characters that do not express, characters that are not expressed in the progeny and it is denoted by small alphabets. Another thing that you have to study, one is phenotype and another is genotype. phenotype क्या है और genotype क्या है। अब देखो जैसे phenotype है the characters, the external appearance of an organism, we can say external appearance किसी organism का है उसी को हम लोग phenotype कहते हैं। एंड जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि जेनेटिक मेकअप क्या है उसका, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे हमारे पास अभी मेंडल ने बताया, मेंडल ने जैसे लिया टीटी और टीटी, आप देख रहे हो ये प्योर टॉल प्लांट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और प्योर ड्वार्फ प्लांट को इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है, प्योर टॉल प्लांट लिया उन्होंने पी प्लांट का, और यहाँ क्या लिया, प्योर ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने लिया और इसको क्रॉस करा दिया। अब इससे जो गैमीट बना था और इससे जो F1 जनरेशंस बने थे तो कंप्लीट टी 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 और टी टी की रेशियो आई। अब यहाँ पर रेशियो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये प्योर टॉल है, ये भी टॉल हैं, ये भी टॉल हैं, आप देख रहे हैं इसको, ये भी टॉल, कंप्लीट टॉल हैं और ये भी टॉल है। देन वी कैन सी हियर जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की ली गई, फिर सेल्फिंग कराई गई। तो जब टॉल और ड्वार्फ की सेल्फिंग कराई गई, जो प्रोजेनी आए थे वो कंप्लीट टॉल थे, टॉल प्लांट से सेल्फिंग हुई, उनकी जो जनरेशंस आई, फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, सारे के सारे प्लांट क्या दिख रहे थे, टॉल दिख रहे थे। We can say that in first progeny
here you can see tall and tall. जो फर्स्ट प्रोजेनी आई थी वो टू कंप्लीट टॉल प्लांट थे, दोनों टॉल प्लांट से सेल्फिंग कराया गया। जब इसमें क्या हुआ कि एक प्लांट टॉल है लेकिन एक प्लांट में टॉलनेस था, लेकिन उसकी सेल्फिंग में जीनोटाइप में क्या हो गया था, जीनोटाइप में उसकी ड्वार्फनेस थी, जिससे कि क्या आया, टॉल 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 और एक ड्वार्फ आ गया। अब इसका क्या बनेगा, कंप्लीट टॉल बना। हुँ? और ये बना टी टी और ये बना टी टी। अब ये समझोगे तुम। जैसे ही अभी हम लोग देखेंगे इसकी जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप 1 टॉल प्लांट हो गया और 2 प्लांट जो है देखने में टॉल है लेकिन उसकी जीनोटाइप क्या हो गई, जीनोटाइप में ड्वार्फनेस आ रही है और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, तो जीनोटाइप 1 to 1 हो गया। जबकि फिनोटाइप क्या है, ये देखने में कैसा है, तो 3 प्लांट एक जैसा हो गया, 3 प्लांट यानी 3:1, 3:1, 3 प्लांट टॉल हैं और एक प्लांट ड्वार्फ है। तो दिस इज द जीनोटाइप रेशियो एंड दिस इज द फिनोटाइप रेशियो। प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ प्लांट को जब क्रॉस कराया था तो कंप्लीट ऑल प्लांट्स वेयर ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। कौन प्लांट्स में, ये F1 जनरेशन में हुआ। फिर F1 जनरेशन की सेल्फिंग जब हुई थी, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, तो ये बना हमारा F2 जनरेशन में। Here we are taking only one character, मीन्स कि स्टेम की हाइट को एक कैरेक्टर लिया गया, इसलिए इसे इस तरह के रेशियो को मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो, या फिर कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस प्रोसेस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया गया। मेंडल ने आगे 2 कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया, तो उसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड रेशियो कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स दैट यू हैव टू learn well, and if you study it very well then this chapter will be very easy for you। तो आप देख लो यहाँ पे टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग्स आया हुआ है, सारे टॉल ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं। और उसकी जो जीनोटाइप कहेंगे, वो जीनोटाइप देखो टीटी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सब में जीन्स आ गए हैं, वो जो शॉर्ट वाली जीन्स है वो आ चुकी है लेकिन वो अपियर नहीं हुई थी। तो अपियर नहीं हुई बिकॉज इट इज ए रिसेसिव कैरेक्टर। और जो टॉलनेस हाइट अपियर हो गया, सारे प्लांट्स टॉल क्यों हो गए, सारे प्लांट्स टॉल हो गए बिकॉज टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर और जो ड्वार्फनेस है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, टॉलनेस टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड dwarfness is the recessive character। dwarfness cannot be expressed in first generation। ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, F1 जनरेशन में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये F1 है, ये F1 जनरेशन है। टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराया गया। F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वेयर टॉल बिकॉज टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर while dwarfness is the recessive character। but in the genotype, जीन्स अगर इनकी बात करें, ये देखने में तो इनकी फिनोटाइप तो जरूर टॉल है, लेकिन अगर इनकी जीन्स की बात करोगे तो जीन्स कैसे होंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे।
अब इन दोनों प्लांट, इन सारे प्लांट्स में से किसी दो प्लांट को लेके सेल्फिंग कराया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको एक बार फिर से आप इसको अच्छे से शॉर्ट में लिखें और आप इसको बहुत ही कंक्लूडिंग वे में समझ जाएं कि मेंडल ने सबसे पहले क्या किया। मेंडल ने सबसे पहले एक टॉल प्लांट को लिया जिसकी जीनोटाइप कैपिटल टीटी, और इसको क्रॉस किससे करा दिया बच्चे, ड्वार्फ से, ड्वार्फ प्लांट से, और इनकी कैरेक्टर क्या थी, स्पॉट टीटी। अब जो इसकी जो सेल्फिंग, इस दोनों के क्रॉस से जो प्लांट्स आए थे F1 जनरेशन में, वो ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, सब एक साइज के प्लांट्स आ गए। लेकिन ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, आप देख रहे हो ना F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या लिखनी होगी कि लेकिन इनकी जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप में ड्वार्फ की जीन्स लगी हुई है, ड्वार्फनेस की जीन्स पड़ी हुई है, ड्वार्फनेस की जीन्स लगी हुई है। अब ये देखो, अब इनकी जब सेल्फिंग की जाएगी, ये दो प्लांट लेकर इनकी सेल्फिंग की जाएगी, टीटी और टीटी को क्रॉस कराया जाएगा, तब जो प्लांट्स हमारे पास मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे। तो एक प्योर टॉल प्लांट है। अब इसकी फिनोटाइप, आप वही चीजें हैं जो मैं अभी पहले लिखी हूँ, उसी बात को फिर से मैं और एक्सप्रेस कर दी हूँ ताकि आप समझ जाइए। फिनोटाइप प्योर टॉल एक प्लांट हुआ, फिनोटाइप यानी कि दोनों टॉलनेस है लेकिन उसकी देखने में, फिनोटाइप सॉरी ये जीनोटाइप हो जाएगा। फिनोटाइप है कि तीन प्लांट्स टॉल दिख रहे हैं, इसलिए फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस को कहते हैं, तो इसलिए इसकी रेशियो 3:1 हो गई। और इसकी जीनोटाइप क्या हो गई बाबू, जीनोटाइप बच्चे क्या हुआ, ये 1 है, 1:2। अब दो जीनोटाइप है जिसमें मिक्स्ड है, एक टॉल का जीन्स आई है और एक ड्वार्फनेस की जीन आई है, तो ऐसे दो प्लांट आ गए। समझ रहे हैं आप, 1:2, और एक प्योर ड्वार्फ है, इसको प्योर ड्वार्फ कहेंगे, ये ऐसा 1 है। तो इस तरह से जीनोटाइप, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, फिनो मोनोहाइब्रिड पूछा जाएगा, व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, दिस इज F2 जनरेशन, याद रखना है। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड इट वेल। I will again teach you in my next video. Wait for my next video and I will help you to understand the things very well. This is the activity that you can do. तो आप इसको पढ़ें अच्छे से, एंड आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आ जाएगी और यू विल बी एबल टू see the next video on time. So gradually you can understand each topic very well. Okay, thank you, thanks for watching, thanks for watching all students, thanks, many thanks for watching my video. Okay, thank you, thank you and have a very nice day. Okay.